many churches they don't have meetings for married couples. बहुत से कलीसियाओं में शादीशुदा बहनों और भाइयों के लिए मीटिंग नहीं होती है, But I believe in the time in which we live, we need to understand God's purpose for the home. पर जिस समय हम रह रहे, मुझे लगता है कि परमेश्वर का हमारे परिवार के प्रति क्या इच्छा है हमें जानना ज़रूरी है। Because everywhere I see a tremendous attack on Christian homes by the devil. क्योंकि मुझे लगता है कि शैतान का मसीह परिवारों के ऊपर बड़ा हमला है। Right from the time God established the first home, शुरुआत से जब से परमेश्वर ने पहला घर बनाया, that was Adam and Eve. Adam and Eve. आदम और हवा के समय, As soon as they were united in marriage, we read immediately that the devil came. Next chapter. जैसे हम पढ़ते हैं कि उनका शादी हुआ, दोनों का एक हुआ, उसके इमीडिएट साथ में हम पढ़ते हैं कि शैतान का आगमन हुआ। So the devil was just waiting for them to be married to try and confuse their life. शैतान इंतज़ार कर रहा था कब उनकी शादी होती है और वो उनके जीवन में प्रवेश करे। And it's the same today. आज भी ऐसा ही है। We mustn't forget that the Bible begins with Satan attacking a Christian home. हमें भूलना नहीं चाहिए कि शैतान की शुरुआत मसीह परिवारों का हमला करने से होती है। His aim was not only to separate them from God, but also to separate them from each other. उसका केवल उद्देश्य शैतान का ये नहीं था कि उन्हें परमेश्वर से अलग करे, पर एक दूसरे से भी अलग करे। And how do we know that Satan came between them? और हम कैसे जानते हैं कि शैतान उन दोनों के बीच में आया? Because as soon as God comes and asks Adam, did you eat of the tree? जैसे ही परमेश्वर ने आदम से पूछा क्या तूने उस झाड़ के फल को खाया, He points at his wife and says, she's the cause of the problem. और आदम ने उत्तर दिया कि हवा जिसे तूने मुझे दिया है वो इसका कारण है। So we find that that's what sin brings. Sin immediately makes us accuse others. और इसी तरह हम देखते हैं कि पाप हमें दूसरों को दोष करने के लिए कार्य करता है। And that tendency to accuse the wife or accuse the husband has come down through all these 6,000 years. और इन 6000 सालों में ये धारणा पत्नी का पति को और पति का पत्नी को दोष लगाने का आरंभ हुआ है। And if we say that Jesus has saved us from sin, और अगर हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमें पाप से बचाया है, we have to ask ourselves whether Jesus has saved us from this poison of accusing one another. तो हमें ये देखना है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें इस जहर से, एक दूसरे को दोष लगाने वाले जहर से बचाया है क्या? Adam could have said, Lord, I'm sorry, I ate that tree. आदम ये कह सकता था, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने उस फल को खाया है। There was no need for him to blame his wife. उसे कोई ज़रूरत नहीं थी पत्नी पर दोष लगाने की। The wife didn't force his mouth open and push the fruit down. हवा ने उसे ज़बरदस्ती नहीं किया था मुंह खोलकर उसे फल खिलाने के लिए। So what is the need to say, my wife gave the fruit? तो ये क्या ज़रूरत था कि ये कहना कि हवा ने मुझे बहका दिया? But then we see something of the evil of Satan's nature. यहाँ से हम देखते हैं कि शैतान का जो बुरा दुष्ट स्वभाव है, That we're not able to see our own fault initially, कि हम शुरुआत में अपना दोष नहीं देखते, even when standing before God. जबकि हम परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं तभी भी। That's amazing that we can stand before God and still not see our own fault. ये बहुत अचंभे वाली बात है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं फिर भी अपना दोष नहीं देखते। So it is this spirit of accusing that started with Adam that brings divisions in the home. ये आदम के समय से शुरू हुआ दोष लगाने वाला आत्मा का कार्य अलग करने का। And when there are divisions in the home, the children also go away from God. जब घरों को पति पत्नी को अलग करने का कार्य होता है तो बच्चे भी परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। And that's the next thing we read, that Adam's first son became a murderer. यहीं से हम देखते हैं कि आदम का पहला पुत्र हत्यारा बना, Killed his own brother. अपने भाई को मारने वाला। So if you want to bring up your children properly, you better learn as husband and wife to live together.
अगर हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में लाना है तो पति पत्नी हमें सीखना है परमेश्वर के साथ चलना, मेल में चलना। Because the devil tries to bring a separation so that he can come between into the house. क्योंकि शैतान अलगाव पति पत्नी को करना चाहता है कि उसके प्रवेश मिले परिवार के अंदर। And both of you may be strong, but the children are weak. और दोनों पति पत्नी मजबूत होंगे लेकिन बच्चे कमज़ोर हैं, So the devil gets the children first. तो पहले आक्रमण शैतान का बच्चों पर होता है। And I've seen that in many homes, और ये मैंने बहुत परिवारों में देखा है that where husband and wife are divided, it's difficult for the children to be spiritual. जब पति पत्नी का अलगाव होता है बच्चों को भुगतना पड़ता है। And then they start blaming the children. They blame each other, now they start blaming the children. तो पहले वे एक दूसरे को दोष लगाते हैं, फिर बच्चों पर दोष लगाते हैं। Satan is the great accuser. शैतान बड़ा दोष लगाने वाला है, He's always accusing. वो हमेशा दोष लगाता है। And we've got that poison in our system from Adam. और ये हमारे अंदर आदम से आया हुआ एक तरीका है। To me, this is one of the big differences of being in Adam and in Christ. और ये बहुत बड़ा फर्क है आदम में रहना और मसीह में रहना। You know, we all say we've been cut off from Adam and grafted into Christ. हम सब कहते हैं कि हम आदम से कट गए हैं और मसीह से जुड़ गए हैं, But have we been cut off from this poison we have got from Adam? पर क्या हम उस जहर से जो आदम से हमें मिला है अलग हुए हैं? You know, it says about Satan in Revelation 12. प्रकटीकरण 12वें अध्याय में शैतान के विषय में पढ़ते हैं। Revelation chapter 12 and verse 10, 12वां अध्याय प्रकटीकरण का 10वां वचन, where in the middle of that verse it says, Satan is called the accuser of our brethren, who accuses them day and night before God. जिसमें यह बताया गया है इस वचन के मध्य में कि शैतान भाइयों का दिन और रात निंदा करने वाला है, Who accuses them day and night before God. जो परमेश्वर के सामने भाइयों को दिन और रात निंदा करता है। He works 24 hours a day. ये दिन में शैतान 24 घंटे कार्य करता है। And you know, he may tell a lie to us, but he can't tell a lie to God. हम अपने आप को झूठ बोल सकते हैं लेकिन हम परमेश्वर को झूठ नहीं बोल No, सकते। Satan tells us lies, शैतान हमें झूठ बोलता है, but he can't tell a lie to God. But Satan पर cannot tell. शैतान परमेश्वर को झूठ नहीं बता सकता। So he cannot go and say, God, you know, that child of yours murdered somebody. तो ये नहीं कह सकता परमेश्वर ये तेरा बेटा हत्यारा है, No, because that's a lie. क्योंकि ये झूठ है। So what does Satan accuse before God? तो शैतान किस चीज़ का दोष परमेश्वर के सामने लगाता है? Only what is true. जो सच है वही दोष लगाता है। He can't tell God lies about me. वो ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर मेरे लिए झूठ बोलता है। No. He can't tell God lies about me. परमेश्वर के सामने ये नहीं कह सकता कि मैं झूठा हूँ। No. शैतान परमेश्वर को मेरे बारे में झूठ नहीं बोल सकता। शैतान परमेश्वर को हमारे बारे में झूठ नहीं बताता। वो सच ही बोलता है. He also speaks the truth. सही बात। So he can only say what I actually did wrong. तो वो यही कहता है कि जो मैंने सच में हकीकत में गलत किया है। Now why am I saying that? हम ये क्यों कहते हैं? Because I've heard many times when people accuse somebody, क्योंकि लोग जब मैंने देखा है दूसरे को दोष लगाते तभी they find comfort in the saying that, but I'm speaking the truth. तो वे अपने दिल में एक सांत्वना पाते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। Well, Satan also speaks the truth to God, but it's accusation. लेकिन शैतान भी सच ही कहता है लेकिन वो एक दोष है। So don't find comfort that what I'm speaking is the truth. हमें इस बात से सांत्वना नहीं लेनी चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ दोष लगा रहा हूँ वो हकीकत है, सच है। That's not the important point. ये महत्व का मुद्दा नहीं है। What is your spirit? What is your spirit? आपका आत्मा क्या है? Is it a spirit of love, वो प्रेम का आत्मा है or is it a spirit that wants to tear down that person? क्या यह आत्मा आपका ऐसा है कि दूसरे आदमी को नीचे करना? We can tear down a person speaking the truth. हम उस आदमी को नीचे कर सकते हैं जो सच कह रहा है। And that's because there's a little bit of hatred in our heart for that person. ये इसलिए होता है कि थोड़ा बहुत हमारे अंदर नफरत बाकी है। You may say
that you love somebody. हम ये कह सकते हैं कि हम किससे प्यार करते हैं, But the Bible says in 1 Peter 4 and verse 8 that love covers a multitude of sins. पर पतरस 1:4 में परमेश्वर कहता है Wait, 4:8 में. 4:8 में पतरस पहला पतरस 4:8 में परमेश्वर कहता है कि प्रेम बहुत से अपराधों को ढांप देता है, Covers it. ढांप देता है। So if you really love, you will cover. अगर आप सच में प्यार करते हैं तो आप अपराध को ढांपेंगे। For example, उदाहरण की तरह supposing your daughter is fooling around with some boy, आपकी बेटी किस भाई के साथ किसी लड़के के साथ, is going around with some boy, उसका कुछ अफेयर जिसे कहते हैं किसी भाई के साथ, you won't tell everybody about it. आप इस विषय में हर एक को नहीं बताएंगे। You may know it's there, आप ये जानते होंगे कि ये हकीकत है, but you'll try your best to cover it लेकिन आप बहुत अच्छी कोशिश करेंगे उसे ढांप देने की, छुपाने की, because you love your daughter. क्योंकि आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं। But if it's somebody else's daughter, लेकिन किसी और की बेटी then you'll talk about it. अगर ऐसी हो तो आप उसके लिए बात करेंगे, Even if it is somebody else in the church. अगर वो कोई कलीसिया की बहन भी रहेगी। So you know there's very little love among believers even in the church. तो कलीसिया में भी भाइयों और बहनों के अंदर बहुत छोटा सा थोड़ा सा प्रेम है। And even among husband and wife. आप पति और पत्नी में भी देखते हैं। If you're not careful here, the devil will come right in. अगर आज बात में सचेत नहीं है तो शैतान प्रवेश करेगा। What does Jesus do? Does he shut his eyes to all the faults in his children? यीशु मसीह क्या करता है कि अपनी आंखें बंद कर देता है अपने बच्चों के दोषों को देखकर? No, we read in Hebrews 7 इब्री 7 में हम पढ़ते हैं in verse 25. 25वें वचन में, He always lives to make intercession for them. वो हमेशा ऐसों के लिए मध्यस्थता करता है। So here are two things going on 24 hours. तो यहाँ दो चीज़ें लगातार 24 घंटे हो रही है। That Satan is always accusing us. शैतान हमारे लिए परमेश्वर के सामने दोष लगाता है And Jesus is our advocate, always praying for us. और यीशु मसीह हमारा वकील हमारे लिए मध्यस्थता करता है, प्रार्थना करता है। So we see here that I do something wrong first. और यहाँ हम देखते हैं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। And when Satan sees it, he immediately accuses. ये शैतान मुझे करते हुए देखकर मेरी निंदा परमेश्वर के सामने करता है। Jesus sees it and he immediately prays. यीशु मेरे अंदर यही दोष देखता है लेकिन परमेश्वर के सामने मेरे लिए प्रार्थना करता है। Can you see this picture? यहाँ आप परमेश्वर का शास्त्र देख सकते हैं। I'm doing something wrong. मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। Satan sees it and immediately accuses. शैतान देख रहा है और तुरंत उसको परमेश्वर के सामने Jesus दोष also लगाता है। sees it. परमेश्वर भी देख रहा है। He यीशु immediately मसीह। prays. वो लेकिन जल्द से हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। What do you do when you see that? हम क्या करते हैं जब हम ऐसा देखते हैं दूसरों के जीवन में? You know the answer. आपको उत्तर पता है। And in that moment, you know whether you're like Satan or whether you're like Jesus Christ. ये उस समय बताता है कि आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं या नहीं, शैतान whether से। you're like Satan. क्या आप- शैतान के जैसे हैं कि प्रभु यीशु के जैसे हैं? आप प्रभु यीशु को पसंद करते हैं, शैतान को उस समय पसंद नहीं. लाइक Like means सेम हाँ. आप शैतान के जैसा है या परमेश्वर प्रभु यीशु के जैसे हैं? We know because Jesus is praying and Satan is accusing. Jesus is praying हाँ, हमको पता है कि यीशु मसीह प्रार्थना करता है and Satan is accusing. और शैतान दोष लगा रहा है।